When I was holding her, तो उससे हाथ ने जब पकड़ा तो तब मुझे ऐसा फील हुआ, I think कि I'm growing up now. Things are not supposed to be kept in your heart. Things are supposed to be expressed loudly. Okay. I don't think of what's gonna happen tomorrow. How is it going to happen? I'm very instant. I live in the moment. It's all about learning. There's nothing to regret in life. You should cherish that you're waking every day in the morning. One work is जो आपसे इंडस्ट्री करवाती है. One एक ऐसा काम होता है जो आप खुद करना चाहते हैं. मैं इंसान ऐसा हूँ कि अगर मैं लो होता हूँ तो मैं खुद घुस जाता हूँ उनमें जाके उन्हें परेशान करूँगा उस समय. सो नाउ दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन फॉर मी कि क्या करना है, पहले शादी करें या पहले मूवी करें. तो मैंने कहा पहले मूवी करते हैं, फिर मूवी तैयार होती रहेगी, फिर उसके बाद हम शादी करते हैं. मैं ही बतौड़ा हूँ. शी इज़ अ वेरी गुड लिसनर. गैम्बल करने बैठे हो, आपका पैसा जा रहा है, आप और डालते जा रहे हो और डालते जा रहे हो, ये सोच के कि इकट्ठा आ जाएगा सारा. So Himansh, welcome to Movie Fight and congratulations. Just exact 1 month of your wedding, right? 12th November and today is 12th December. Wow. So congratulations. Thank you so much. What a wonderful date to be here. Exactly 1 month after my wedding. अभी मैं थोड़ा दिखना शुरू हो गया हूँ सबको. तो मतलब ये इन एक महीनों में मैं अगर बात करूँ तो क्या कुछ लाइफ में चेंजेस आ गए हैं हिमांश कोहली की लाइफ में? I mean, if you look at it from the outer side, तो ऐसा लगता है ना सबको कि क्या क्या नई नई चीज़ें हो रही है लाइफ में. However, I feel that it's still the same. Perhaps it's more enhanced. More enhanced is the right word. It's more enhanced, and I'm getting used to of Vinny's lifestyle. We are correcting our things together now. Like I'm a early morning person. मुझे रोज सवेरे सवेरे उठना पसंद है. अच्छा. तो मेरी वजह से अब वो जल्दी सो जाती हैं टाइम से. And earlier she was yes. So most of the time she's on her laptop doing her work. She loves reading. तो उनको बुक पढ़ते पढ़ते रात के 2-3 कितने बज गए, she doesn't really get to know of it. और मैं यहाँ पे 10 बजे अब सो जाता हूँ, लाइट्स ऑफ कर देता हूँ पूरी by 10. So that's a new lifestyle change. And waking up, पहले मेरा नाश्ता बिल्कुल भी समय पे नहीं होता था. That was one problem. My mother used to always complain कि तुम उठ तो जाते हो लेकिन नाश्ता नहीं करते हो टाइम पे, तो अभी भी तुम अपनी लाइफ साइकिल पे सही से नहीं चल रहे हो. She believes early morning, have lots of breakfast, have a heavy breakfast, और धीरे धीरे अपने नेक्स्ट मील्स में उसको लाइट करते रहा करो. एंड योर डिनर शुड बी द लाइटेस्ट, सबसे easy होना चाहिए, so that you can go to bed easy and you wake up fresh. So now I mean because of her she loves having breakfast early morning. So अगर वो उठ जाती है जैसी, तो मतलब मॉम की अब ये तो कंप्लेन नहीं हो गई कि मतलब शादी होते ही तुमने अब चेंज हो गए? मैं बोल रही थी तो चेंज नहीं हो रही. मम्मी कह रही है अब सब तुम्हारी जिम्मेदारी, अब तुम दोनों संभालो. हमारा जो था हमने कर दिया. ओके. एंड सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मतलब सब जानना चाहते हैं, आई एम श्योर दैट, कौन है विनी? कहाँ मिली विनी? कैसे लाइक ये लाइफ की जो पार्टनरशिप है ये कैसे हुई? Vinny is from Madhya Pradesh. And she's a data scientist. Right? Yes, she's a data scientist. Vinny से मेरी पहली मुलाकात मेरे पेरेंट्स की वजह से हुई. Since you all know, we've had an arranged marriage. Right. And the concept is arrange come love, क्योंकि आप मिल जाते हैं और आप कहीं समय बीच में अगर आप when you click, when you keep meeting, you end up falling in love. And I think that's exactly how it happened with us as well. But we met in her native, जहाँ पे वो रहती हैं, जबलपुर, कटनी. कटनी is a small district. और my distant family lives there. Yeah, so my relatives live there. मैं बचपन से जा रहा हूँ, काफ़ी छोटी उम्र से वहाँ पे गया था. तो मेरी बुआ रहती हैं उधर. So she also is around the same family. And रिश्ते की बात चलाई मेरी दादा दादी ने वहाँ पे कटनी में. And my father's बुआ, so my दादी, तो उन्होंने बात चलाई रिश्ते की. And it just it was at the right time. My parents were also like, it's time now, you should also think of getting into your new phase. You're working, it's good, you keep working, keep achieving whatever you want to do in your life, but simultaneously this is also important. But this eye-opener in my life was after my sister. She was blessed with a beautiful, beautiful princess.
last year. Right. तो उसको आदिशा इज her name, and when I was holding her तो उससे हाथ में जब पकड़ा तो तब मुझे ऐसा फील हुआ आई थिंक कि I'm growing up now and we all are growing up. It's a beautiful phase I've seen and I was again waiting for the next phase. तो मुझे लगा कि अब whenever it's time, if I happen to click with anyone, then I would probably move into this phase. Such a sweet story. लेकिन मुझे ये बताओ कि जब like you mentioned about arranged marriage, so कभी ये सोचा था कि arranged marriage ही करूँगा मैं, या was it scary for you because generally लोगों के लिए होता है. In fact, talking about millennials, like हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो होता है कि मतलब arranged marriage कैसे कर ले. तो हिमांश के जहन में कभी ये बात आई थी? To be very honest, I go with the flow. Okay. I don't think of what's going to happen tomorrow. How is it going to happen? I'm very instant. I live in the moment. मुझे तो पिछले साल तक अगर आप देखें बिगनिंग में तो मुझे ये भी नहीं लगता था कि मैं इस साल तक शादी कर लूँगा. But again, you know, you think of something, but God has different plans for you. I never thought कि मैं arranged marriage करूँगा. I was also in this delusion that you know मैं तो love marriage ही करूँगा. And the way I was looking at things from that angle probably didn't click well. So then I thought, why not this side? जिस चीज़ को लेके मैं इतना adamant हूँ कि नहीं मैं arranged marriage नहीं करूँगा. Let's be more open towards this side and see how it is. And the first time I met someone and I think मैंने कोई रिश्ता ऐसे देखा भी नहीं था कहीं पे भी. It just happened to be that first time you clicked so well that you eventually set yourself up there. You see yourself over there. And Vineet and Bila, हमारी पहली डेट हुई थी. We met in Katni when I went there to meet her family, and then she took me out for a wildlife adventure. Wow. Yeah, we both love photography. We both love wildlife. There's a lot we have in common, and that starts with travel. तो हम लोगों को घूमना पसंद था तो वो मुझे बांधवगढ़ लेके गई और बहुत ही मेमोरेबल रहा वो मेरे लिए. बहुत ही special था because I love wildlife. I keep traveling, keep clicking some pictures. They are very personal. मैं लोग मुझसे पूछते भी कि कहाँ हैं वो सारी pictures. तो वो लोग जो मेरे साथ हैं जितने भी लोग who are around me, I keep showing them. But it's very personal, so I keep all of them around me. Like I can say that's one hidden talent of yours, photography, wildlife photography. That's something I would rather be So saying. I would actually like to see few pictures जब भी आप दिखाना चाहो. Absolutely. You have I can look for them in my camera. Pictures are really high, big. उनकी space बहुत ज़्यादा होती है because they are very refined and I think I'm sure कुछ ना कुछ तो होगा. I can show you. What were the other things that clicked in your first meeting? Ideally, I believe it was how we think, our you know take on life. She comes from a completely different background. मैं तो पहली बारी जब मुझे ऐसा मिलते हुए भी लग रहा था कि आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम क्वाइट हैप्पी इन माय स्पेस. शी इज अ साइंटिस्ट. तो मुझे ऐसा लग रहा था कॉन्वर्जेशन क्या होगी इसमें, बात क्या होगी कि बच्चन साहब की यहाँ नई मूवी आई है टू क्वांटम फिजिक्स. दिस अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड. But slowly and gradually we keep interacting of our world. She's not much into movies at all. Okay. बहुत कम देखती हैं movies. To start with, I think, but she was a 90s movie buff, I would rather say. But that was exactly when she was studying here. जब वो इंडिया में थी, then she moved to US. She was working there. तो उनका मूवी से तो बिल्कुल completely disconnection हो गया उसके बाद में. She was like कि she started reading. She was more into novels. तो movies पे वो कम ध्यान देती थी. She loves anime. तो वो उनको interesting लगता है. And उनका take है जो उस पे. पहली फिल्म देखी थी? उन्होंने मेरी यारियां यारियां नहीं देखी उन्होंने. बट उन्होंने इसके सारे गाने सुने और उन्होंने ये भी बताया कि जब वो यूएस में भी थी तो ऐसी भी बहुत जगह थी जहाँ पे शी वुड स्टेप आउट विद हर फ्रेंड्स फॉर अ पार्टी एंड शी वुड हियर माय सॉन्ग्स. सो शी वाज लाइक योर प्रेजेंस वाज देयर समहाउ irrespective of her being able to watch the film or no. But she knew who I was because again the families are मतलब हम लोग सब जानते थे एक दूसरे को. पर्सनली ऐसे टच में तो नहीं थे.
तो उन्हें पता था कि हाँ एक हमारा एक कोई एक लड़का है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है इतने साल से. शी न्यू अबाउट माई टेलीविजन शो, शी हैड सीन हमसे है लाइव. सो दैट वाज द टाइम व्हेन जब वो टेलीविजन देखती थी, अपना समय देती थी टीवी को. सो इट वाज अराउंड देन व्हेन शी सॉ मी. एंड नाउ आई थिंक द फर्स्ट मूवी ऑफ माइन व्हिच शी सॉ वाज गहवारा, जो अभी हाल में रिलीज हुई है अमेजॉन प्राइम पे. तो मैंने भी उनको पहली मूवी वही दिखाई अपनी. आई थॉट दैट सिंस शी इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, तो उनको थोड़ा आर्ट स्पेस की मूवी से दिखाना चाहिए. बीवी है भाई. Let's start with the work I have started contributing more, not just as an actor but to every dimension of filmmaking. Gyavara was again one of our most loved projects, और उसे हमने बनाया अपने प्रोडक्शन हाउस से, हैप्पी काउ फिल्म्स से. Yeah, that's my own production house, and that's how it started. Gyavara was our first in production, yeah. and it's again a set of few people from the industry, those who are trying to make it big and full of ambitions, full of stories, एक fresh approach. और ऐसे ही धीरे धीरे मिलते हुए, बॉम्बे में ऐसे ही होता है, बॉम्बे में आप मिलते रहते हैं. किसी से आप 8 साल पहले मिलते हैं, भले उस समय चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं, बट कभी कभी वो 8 साल के बाद में ऐसे वर्कआउट करने लग जाती हैं जैसे वो बनी ही आपके लिए थी. एंड उसके बीच की एक जर्नी होती है जो मैं आज अपनी लाइफ से अनलॉक करता हूँ. दैट यू नो, दैट जर्नी वाज टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क एंड व्हाट यू वांट. आपको एक क्लैरिटी मिलती है उस जर्नी में. सो व्हेन वी क्लिक्ड अगेन, it started with this project, and it's doing touchwood, it's doing so well. We've been nominated in so many film festivals. हमारा कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्शन हुआ. इंटरनेशनली बहुत बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में we were nominated, we were supported, we were loved. कुछ फिल्म फेस्टिवल्स में मैं खुद गया जाके, क्योंकि अगेन मेरा इस दुनिया से कुछ ताल्लुकात नहीं रहे हैं ज़्यादा. मैंने शुरुआत की चैनल वी से, तो वो थोड़ा चैनल वी was more of fun space, fun मस्ती. content was more school college influenced and brighter side of life. But now in this side of art and cinema, I see another depth. So tell me something. जब इंडस्ट्री में एंटर किया पहली फिल्म की, उस वक्त जो इंडस्ट्री में पहला फ्रेंड बना था, क्या आज भी who was that friend? And मतलब जिससे anytime you can talk, you can take any suggestion. So there is, yes, of course. मेरे इनफैक्ट बहुत ही कम फ्रेंड्स रहे हैं, बट जितने भी फ्रेंड्स रहे हैं वो आज तक मेरे फ्रेंड्स हैं. आई एम वेरी सेलेक्टिव. आई माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू पिक माई फ्रेंड्स, बट जब रिश्ते बनते हैं तो फिर वो अच्छे ही रहते हैं, वो ऐसे. एंड आई हैव देम ऑल अराउंड मी, एंड मैं उनसे पूछता भी हूँ. इंडस्ट्री फ्रेंड्स हैं. there's a friend of mine, Shivam, who works in T series, and when we had met, जब मेरी फिल्म आई थी पहली फिल्म, तो उससे हम पहले ही मिल चुके थे, जब तो मैं लॉन्च भी नहीं हुआ था. So we clicked over things, and you know, our interest, our cinema interest, our song interest, and वो आज भी मेरा दोस्त है, आज भी उतना ही अच्छा दोस्त है. Then from the film industry, Tushar Kapoor I had met, and we are still friends. I can still go to him for all my projects कि उनको वो कैसा लग रहा है, and I still do. और वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं, मुझे ऐसा लगता है दोस्ती में आप सभी कुछ बात करते हैं, हर तरह की अपनी लाइफ के अराउंड जितनी भी चीज़ें इर्द गिर्द चलती हैं, आप सारी चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं. और दोस्त होने भी इसीलिए चाहिए. थिंग्स आर नॉट सपोज टू बी केप्ट इन योर हार्ट, थिंग्स आर सपोज टू बी एक्सप्रेस्ड लाउड, एंड स्पेशली विद द वंस यू आर कंफर्टेबल विद, जिनके साथ में आप खुश हैं. So your friends were there in your lowest and highest. हर जगह, हर समय है, हर समय रहते हैं. मैं इंसान ऐसा हूँ कि अगर मैं लो होता हूँ तो मैं खुद घुस जाता हूँ उनमें जाके, उन्हें परेशान करूँगा उस समय. एंड अगर मैं वो नहीं होता हूँ, उनके आसपास नहीं होता, तो वो बहुत बॉदर होते हैं कि क्यों नहीं है यहाँ पे इस समय. सो दे वुड रादर कॉल मी कि कहाँ है, इतने दिन से ज़रा कॉल नहीं आया. बट आई फील ब्लेस्ड दैट आई हैव सम लविंग वंस अराउंड मी. And now tell me कि विनी ने जब ये फिल्म देखी गहवारा, तो what was her reaction? She was stunned. She was like, she never thought, because again उनके माइंड में जो लास्ट की कुछ चीज़ें चल रही थी, वो they were more influenced by the commercial side of cinema.
उन्हें ऐसा लगा कि ये वापस ब्लू है पानी पानी वाले स्पेस में कुछ होगा, बॉय नेक्स्ट डोर होगा, बट गहवारा हिट्स यू हार्ड. इट्स एन इमोशनल साइड ऑफ अ लाइफ. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी एंड एज द नेम सेज गहवारा द फ्यूनरल बियर. तो उसकी कहानी में एक इमोशन दिखता है, अटैचमेंट दिखता है, डिटैचमेंट दिखता है, प्रोसेस है उसका पूरा. इट्स अ 30 मिनट्स फिल्म. और जब उन्होंने वो देखी तो उसके बाद में उनका इंटरेस्ट ऐसा हुआ, देन शी वाज लाइक कि मैं और तुम्हारी मूवीज़ देखना चाहूँगी. तो मैंने उनसे बोला कि अब वो मैं बताऊँगा तुम्हें वो कौन सी देखनी है. टू विच देयर आर 2 more films which I have recently shot, and they are also about to release anytime soon now. Under your production. One is under my production. It's called Julia and Kalia, जिसकी मैं अभी अपनी शादी से पहले ही शूटिंग करके आया था. Shooting for that, yeah. मैं उत्तराखंड में शूट कर रहा था. इनफैक्ट wow, what a coincidence. The other film which I shot, which is about to release, वो भी उत्तराखंड में ही शूट हुई है. And that film is? That's called Aryabhatta Ka Zero, which is tentatively titled. Okay. It's under the edit stage right now, which is almost again completed. So 2025 is what I'm again very excited, charged कि कुछ अलग किया है, कुछ अच्छा किया है, कुछ वैसा काम किया है जैसा मैं करना चाहता हूँ. To start with गहवारा again. That one work is जो आपसे इंडस्ट्री करवाती है, one एक ऐसा काम होता है जो आप खुद करना चाहते हैं. तो इसमें होलसम अगेन आप देखोगे कि प्रोजेक्ट, प्रोडक्शन, एक्टिंग, आई एम इन्वॉल्व इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग. सो यू हैव एन आई टू एवरीथिंग. आप अपना टेस्ट, अपना पैलेट, किस तरह की कहानियाँ जिनमें आप अपना इंटरेस्ट रखते हैं, वो कौन सी कहानी है जो आप बताना चाहते हो. तो मैं ऐसे कई सारे राइटर्स से भी बीच में मिलता रहता था. When I was since 2017 was the last when my film had released. उसके बाद में मैंने खुद एक sabbatical ले लिया बीच में for films, because at that time I think the films were not working that great for me, and I was just working. मुझे बस काम करना था, करते रहना था. Then I changed my approach. I thought, why keep trying? It's like gambling. गैम्बल करने बैठे हो, आपका पैसा जा रहा है, आप और डालते जा रहे हो और डालते जा रहे हो, ये सोच के कि इकट्ठा आ जाएगा सारा. एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स, नॉट थिंकिंग ऑफ कि कौन सी फिल्म कैसी रहेगी, क्या है नहीं है, बट आई वांटेड टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. एंड फ्रॉम दैट आई लर्न सो मच फिल्मों के बारे में. उनके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे मेरे. बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया, उनके साथ कुछ समय स्पेंड किया. तो और एक आर्टिस्ट का जो टेक होता है टूवर्ड्स फिल्म, how they approach a project, how they contribute to a project. I've worked with some really big names from our industry. Prem Chopra ji was one of them. Ashutosh Rana ji was one of them. Rati Agnihotri ji was one of them, and Anupam Kher was one of them. Great actors. And late Satish Kaushik Saab was one of them. There were so many of them. I honestly, again, मैं उस समय उस चीज़ को absorb कर रहा था that today I'm able to work with such good actors. I completely had no idea of what film industry is, how it works, how it operates. आज थोड़ा है, समझ है, इसीलिए प्रोजेक्ट्स वाइजली पिक करता हूँ. पहले वो एक एनर्जी अलग थी दैट आई वांट टू डू एवरीथिंग, आई वांट टू मेक इट रियली बिग. सो उसमें क्लैरिटी नहीं थी, उसमें डेप्थ नहीं थी. आज मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट विद द स्टोरीज एंड द फिल्म्स आई एम डूइंग, आई ओन देम कम्प्लीटली. First film was a struggle or it was smooth? It was extremely smooth for me, extremely smooth. In fact, I look at how I look at it. मूवी मैंने अपना टीवी शो करते करते ही शुरू कर दी थी. इनफैक्ट मैंने टीवी शो की आज शूट ख़त्म की है. जैसे ही आई फिनिश्ड माई टीवी शो का शूट, आई ऑप्टेड आउट ऑफ माई टेलीविजन शो. इट वॉज अ हिट, इट वॉज रनिंग क्वाइट वेल, और बहुत प्यार मिलता था. देयर वर सो मेनी पीपल रीचिंग आउट टू मी ऑन सोशल मीडिया. हाउ my character in हमसे है लाइफ, राघव ओबरॉय, had influenced their lives. उनकी ज़िंदगी में एक वाइब्रेंसी लेके आता था वो कैरेक्टर. इनफैक्ट मैं अपने आप को खुद देखता था, मुझे वो किरदार बहुत अच्छा लगता था. In today's time, how I see the character was very innocent, pure, and it I resonated more with the school life at that time. आज का थोड़ा सा दौर अलग है, जनरेशन अलग है. तो उनकी स्कूल की मस्तियाँ अलग होती हैं, उनकी शरारतें अलग होती हैं, उनमें ब्राइट साइड भी दिखती है, उनमें एक
डेप्थ ऑफ डार्कनेस भी दिखती है। आज के स्पेशली जितने शोज आते हैं नेटफ्लिक्स प्राइम पे, स्कूल हो या कॉलेजेस हो, दे आर नॉट एज प्योर एंड इनोसेंट how the other shows, and especially during our time, I would rather say they were कि घर वालों को जस्ट मोहब्बत से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, और आज मैं अपने घर वालों को दिखाता हूँ, आप ये देखिए जस्ट मोहब्बत या हिप हिप हुर्रे। और वैसे ही हमसे है लाइफ ऑल्सो वाज वन ऑफ द शोज जिसमें पेरेंट्स को बहुत ऑब्जेक्शन होता था कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, बट नाउ व्हेन दे लुक एट यू नो द ट्रांजिशन of television to OTT. So now when they look at these shows and they look at that show, and these are also widely accepted, these shows are also hits. आप numbers में देखेंगे, उनकी popularity में देखेंगे, और वो आज की generation को पसंद भी वही आता है। मुझे on that note ये बता दो कि like what are your thoughts about Gen Zs? They are interesting, they are different. कुछ नया है, नहीं तो boring हो जाती है life. Millennials have their own take, Gen Z they have their own take, और हमसे पहले भी generation X जो, हाँ, तो मुझे तो ये सब इंटरेस्टिंग, मतलब टर्म वाइज हम लोग इनको क्लासिफाई कर देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ये एक इवॉल्विंग सोच है जो हर समय धीरे धीरे इवॉल्व होती जा रही है, और वो कुछ डिफरेंट होंगे तभी इंटरेस्टिंग लगेंगे। एंड यस दे आर एट टाइम्स शॉकिंग, बट दैट्स हाउ इट्स सपोज टू बी ना। हम लोग अपने पेरेंट्स को, अपनी जनरेशन जो हमारी जनरेशन रही है स्पेशली द मिलेनियल्स, वो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को लगता था कि हम लोग बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, या हम लोग बहुत अपफ्रंट रहते हैं अबाउट एवरीथिंग, एंड वी थिंक इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और हमारी और उनकी सोच मैच नहीं करती थी। सो दैट्स फाइन, दैट्स फेयर, आई थिंक दैट कीप्स हैपनिंग। जब भी लाइक पेरेंट्स की तरफ से ये बातें हो रही थी दैट नाउ यू शुड मूव ऑन टू योर नेक्स्ट फेज इन लाइफ एंड ऑल, सो एवर दिस थॉट केम इन योर माइंड कि शादी के झमेले में नहीं पड़ता हूँ और लेट्स बी सिंगल, आगे देखेंगे, या यू वांटेड टू गेट सेटल डाउन इन लाइफ? व्हाट वाज दैट? जब तक मैं उस आइडियोलॉजी, उस थॉट पे चल रहा था, तब तक मैंने वो टाइम निकाला है अपना। आई एम 35 नाउ, एंड आई एम अगेन यू नो फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, दे से मैंने बहुत लेट शादी की है। देयर आर सम पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री दोज हु आर सेइंग अरे तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली। मुझे ऐसा लगता है कि रेलेवेंट दोनों ही नहीं है कि तुमने लेट किया जल्दी की, रेलेवेंट ये कि तुम्हें कब करनी है। So again, when I felt from inside that okay fine, I'm ready for this stage, and तो relevant यही है कि आपको कब शादी करनी है, और मुझे जब लगा कि मैं उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ, and I want to I see myself with a companion, and when it clicks, it just clicks. तो इंस्टेंट था, और इसीलिए सबको एकदम इंस्टेंट आया होगा कि मैंने शादी कर ली, बट अगेन मैं उसके लिए तैयार था, तो आई वाज टाइम पहले से यू न्यू लाइक कितना ये मैरिज एंड फर्स्ट मीटिंग एंड मैरिज डेट का जो ये ड्यूरेशन था वो कितना? आई थिंक इट वाजंट मोर देन 6 months टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक 6 to 7 months, एंड जो फरवरी में हम लोग मिले थे, और बाय अक्टूबर सितंबर तक ही हम लोग प्लान कर रहे थे दैट लेट्स थिंक ऑफ गेटिंग टू दिस न्यू फेज ऑफ आवर लाइफ। एंड इन दैट मीन टाइम उसी समय मेरी एक फिल्म भी बिल्कुल इट वाज एग्जैक्टली रेडी टू बी ऑन फ्लोर्स। सो नाउ दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन फॉर मी कि क्या करना है, पहले शादी करें या पहले मूवी करें। तो मैंने कहा पहले मूवी करते हैं, फिर मूवी तैयार होती रहेगी, फिर उसके बाद हम शादी करते हैं। तो काम की जिम्मेदारियों से भी आप मुक्त हो गए, बाकी अब अपनी पर्सनल लाइफ में I gave my best time to it. So now is my time of enjoying. I think I'm planning to step out somewhere. अभी फिलहाल बॉम्बे में आया हूँ, और यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। I've just shifted to a new house, so it's chaotic right now. And your wife had any like hesitation about the industry, about you being an actor? क्या कुछ ऐसे मतलब फर्स्ट मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ था? देखिए hesitation तो I mean it's a different profession. Right. She has no idea of my profession, so she was definitely curious. Hesitation I think जब आप मिलते हैं, जब आप बात करते हैं, तो इंसान को समझ आ जाता है कि आप किस तरह के इंसान होंगे, एंड what's your take on life. So I think उसको क्लैरिटी मिल गई थी शायद उतने में ही कि this is what she wants. He is the one.
And now talking about relationships, so I would also like to ask you, any regrets from your past relationships? It's all about learning. There's nothing to regret in life. You should cherish that you're waking every day in the morning. So there's a lot in life for you. So I think it's all about experiences. तो कहते हैं ना इंसान का काम है to experience. We should keep experiencing and keep moving like how we do in life. So that's exactly my funda of living. So now, like, you are in your new phase of life. How did you actually handle your success and failure when you entered in the industry? और क्या success और failure हिमांश को affect किया था कहीं ना कहीं? Success for the world, how people see. Failure again for the world, how people see. But if you ask me, As वो an वो individual. वो पैरामीटर्स है, लोगों की नज़रों में पैरामीटर्स होते हैं कि ये इतना काम कर रहा है तो ये इतना सक्सेसफुल होगा, या ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है तो ये बिल्कुल अनसक्सेसफुल होगा. बट फॉर एन आर्टिस्ट इट्स नॉट दैट. दैट इज़ फॉर द वर्ल्ड, दैट्स फॉर द बिजनेस वर्ल्ड. फॉर एन आर्टिस्ट इज़ ऑल अबाउट आप कैसा काम कर रहे हो, वो आपको कितनी खुशी देता है, उससे आपने क्या सीखा और आप उससे एज एन आर्टिस्ट कितना और रिफाइन हुए, और आप उससे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में क्या लेके जाते हो. तो मुझे लगता है एक ऑनेस्ट आर्टिस्ट की लाइफ इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है कि मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिले और मैं उसमें बेहतर करता जाऊँ. दुनिया आपको उस नज़र से देखती है तब कि हाँ यार इस मूवी में इसने अच्छा काम किया तो ये मुझे अच्छा लगा. दे विल स्टार्ट एक्नॉलेजिंग यू, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू. एंड इफ दे आर नॉट एंटरटेन्ड वेल, if they don't like a thing, they will also troll you now. और अगर वो ट्रोल तो आई थिंक इज़ अ रॉन्ग वर्ड, बट आई वुड रादर से कि वो आपको बताएंगे वो कि उनको आपका काम अच्छा नहीं लगा, कि आपकी फिल्म बोरिंग थी. तो अगेन इन माई लाइफ अगेन सक्सेस एंड फेलियर दे वर पर्सनल, कि मैं अपने आप में इतना उलझा हुआ था और सुलझा हुआ था कि ये दोनों चीज़ें मुझे ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था. जो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा तवज्जो रखती थी, मायने रखती थी, वो यही थी कि मैं बाहर से आया हूँ और मुझे यहाँ काम करना है और मुझे वो उस काम से बहुत कुछ सीखना है, एंड मुझे इस गेम में बने रहना है. सो दैट्स हाउ आई सी माई सेल्फ, दैट आई एम कमिंग बैक विद माई प्रोजेक्ट्स, एंड देयर इज़ अ न्यू एनर्जी इन मी, एंड आई हैव माई वाइफ अलोंग. तो पहले मैं जो भी सोचता था एक सोच से ही सोचता था. आज मेरी लाइफ में मेरी वाइफ है, सो शी कैन अगेन करेक्ट मी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं पहले अपनी सोच पे अगेन एडमेंट रहता था. सो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आर ऑलवेज देयर. Say you can discuss things. एज दे से ना कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आर ऑलवेज देयर, प्रोवाइडेड आपको पता लग जाए कि इम्प्रूवमेंट्स करनी क्या है आपको अपनी लाइफ में. तो वो मुझे लगता है कि विनी उन सब चीज़ों के ऊपर से ऐसे पर्दा धीरे धीरे उठाती रहेगी तो आई विल ऑल्सो बी एबल टू इम्प्रूव इन एवरी एस्पेक्ट. वाई जस्ट एन आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन एज वेल. And when was that lowest phase of your life? लोएस्ट लोएस्ट फेज ऐसे जब मैं काम नहीं करता तो मुझे लगता है वो लोएस्ट फेज है. पर अब मुझे वो भी नहीं है वैसा लोएस्ट लगता, क्योंकि अगेन आई एम ऑक्यूपाइड इन माई ओन थिंग्स. आई कीप वर्किंग ऑन माई सेल्फ. फ्री होता हूँ तो मैं अपने आर्ट पे काम करता हूँ. अगर उससे भी अगर इफ़ आई एम डन विद दैट, देन देयर इज़ अ बिजनेस आई लुक इनटू, देयर इज़ अ फैमिली बिजनेस एज वेल जिसे भी मुझे देखना होता है. एंड देयर आर न्यू थिंग्स आई एम वेंचरिंग इनटू पर्सनली. तो उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं बिजी रहता हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ में आप लगे रहे कंटिन्यूसली. सो दैट्स व्हाई दैट्स सबैटिकल, कि व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन फेवर, why keep reattempting with the same approach? थोड़ा सा समय लो, take a breather, relax, think. Was it also because this industry is so unpredictable? So I mean, फिल्म लाइन में फिल्म्स तो डेफिनेटली अनप्रडिक्टेबल ही है. किसी को नहीं पता फ्राइडे को क्या होगा. और जब सब बनाते हैं तो यही सोच के बनाते हैं कि हम भी मुगले आजम बनाएंगे. आई मीन डे वन एवरीबडी स्टार्ट्स विद द सेम एनर्जी कि हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ डिफरेंट करना है. बट वो एनर्जी लास्ट तक कन्वर्ट होती है नहीं होती है, इफ़ यू आर एबल टू होल्ड ऑन विद द सेम फायर, पैशन एंड इंटेलेक्चुअल एज वेल, तो प्रोजेक्ट्स अच्छे जाते हैं. बट अगेन पैरामीटर्स आर एज पर पीपल, राइट. फॉर फिल्म मेकर्स उनकी कहानियाँ बाहर आ रही है और वो समाज में एक बदलाव ला सके, एक सोच में बदलाव ला सके, या वो किसी भी तरह उनकी फिल्म से कुछ कैरेक्टर से लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस कर सके,
that's their approach. For producers it would be कि वो ज़्यादा पैसा कमा सके, and for actors कि उनका काम ज़्यादा बाहर दिखे. So different approach and different perspectives. It's up to one person कि आप कैसे देख रहे हैं. देखने वाला उसमें सिर्फ बिजनेस देखता है 100 करोड़, देखने वाला उसमें किरदार भी देखता है कि यार ये बढ़िया था यार, मज़ा आया ऐसे देख के. So it's up to one person. अच्छा, अब जल्दी से ये भी बता दो कि शादी के बाद कितने डीएम्स आए, कितने लोगों के दिल टूटे, मतलब भरा हुआ है इनबॉक्स भरा हुआ है. सच्ची बोलूँ मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं एक एक मैसेजेस को भी पढ़ पाऊँ. बहुत सारे टैग्स हुए. स्टिल कीप स्क्रॉलिंग समटाइम्स. पहले मैं जितना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था आज उतना नहीं हूँ, खुद भी पता लगता है अपने आप भी. बट जितना भी देख पाता हूँ आई एम वेरी हैप्पी दैट व्हेन आई सी ऑल द लव बीइंग पोर्ड ओवर. मैंने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की है और उसमें मुझे कई सारे लोगों का एक encouragement मिलता है और बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगा that you know I've taken this new step and I'm venturing into a new phase. और दिल भी टूटा होगा I'm sure. बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है DMs again, see it's about time. कभी क्या होता है ना कि आप इंस्टाग्राम खोल के बैठे हैं और उसी समय आपको नोटिफिकेशन में आया दैट सम पर्सन हैज सेंट यू अ डीएम, तो इंसान क्लिक कर देता है. बट स्पेशली गोइंग टू अ डीएम लुकिंग इनटू इट कौन क्या भेज रहा है, दैट्स नॉट माय स्पेस. आई there's a team as well who's looking after things for me, but they are only looking at the professional approach कि काम काज के कुछ मैसेजेस आए. आज सोशल मीडिया आपको ग्लोबली कनेक्ट करता है. कई बार डिफरेंट कंट्री से कुछ कैंपेन्स आते हैं, कभी डिफरेंट कंट्री से फिल्म मेकर्स रीच आउट करते हैं. So बहुत सारी बातें हो गई, but here's a surprise for you. Okay, वो सरप्राइज भी तुम्हें खुद करना है. Okay. अरे वाह, आई एम सरप्राइज्ड. So you need to take out your phone and we want to talk to Winnie. अरे वाह. First, right? So there's one surprise question for her, but I would request you कि आप कॉल लगाओ अपनी वाइफ को. I'm not sure what she's up to right now, but I believe she must be out for shopping. नया घर शिफ्टिंग हो रही है अभी, तो घर में शिफ्टिंग के लिए बहुत कुछ चल रहा होगा. आई कैन स्टिल डू दैट. एनी विच वेज उससे बात भी करनी थी, काफ़ी देर होगी इंटरव्यूज देते हुए, सो इट्स अ राइट टाइम टू कनेक्ट विद हर एंड लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से. वैसे बातें ज़्यादा कौन करता है, यू और हर? मैं ही बतौड़ा हूँ. शी इज़ अ वेरी गुड लिसनर. Yes, baby, can you hear me? Oh, thank God. Acha, so you're in mid of an interview right now. I'm gonna put you on a loudspeaker. They want to hear your voice. They want to have some conversation with you. And Abhilasha is with me, and let's see what she has to hear from you. Where are you? By the way, किधर है? एक second, किधर हो? खाना वाना खा लिया? Perfect. I'm gonna put you on speaker now. Yes. Hi, Winnie. Hi, Abhilasha. Hi. Firstly, congratulations. Thank you. Okay, since you know that हिमांश अभी इस वक्त यहाँ इंटरव्यू पे है मूवी फाइट के, so it's very sweet of him कि हमने रिक्वेस्ट किया and he connected the call to you. Okay, so मेरा एक सवाल है and which I would like you to ask your husband, and that is like one question which you actually want to ask him. One question that I want to ask you. Yes. वो क्या होगा, मैं वो क्या पूछूं? है? मुझे भी पता है ना, 2 बज रहे. खाना खा लिया बेबी? Exactly. I can't think of any question right now. Except like he had his coffee on time or not. बाकी तो कॉफी भी होगी, खाना भी हो गया और इंटरव्यू भी बढ़िया चल रहा है. कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है. और उसी इंटरव्यू के बीच में दे वांटेड टू हियर यू आउट एज वेल. मुझे पहले बताओ शॉपिंग कैसी चल रही है? चल रही है, Still deciding. Yeah. I hope you end up finding the product you want. I'm looking at air fryer. Oh. घर की शॉपिंग है, I told you. घर की शॉपिंग. Okay, एक और सवाल है विनी. One quality of Himansh which you absolutely love and one which you don't like actually. Be very frank, huh? This is the last one. Then I don't like
Yeah. वो तो फिर आपको 5-6 months बाद पूछना पड़ेगा that I didn't like in it. Hmm. But one quality that I really love is his honesty. Wow. Very honest and upfront about his emotions, his thoughts. That's what I really like. Wow. Thank you so much for being on call and asking the question, Vinny. Yeah. Thank So, thank you so much. thanks for having me on the call. लव यू Have बेबी. a great day. You Bye. too. Bye. मैं आपको कॉल करता हूँ. So Vinny loves honesty of yours. That's so sweet. Yeah, that's really sweet. So you seems to be a very honest guy, by the way. I mean, that's how it should be. Yeah. One should be very candid and honest. One life. It's way of living, I guess. That's great. Okay, and thank you so much for that call. My pleasure it is. So it was great and lovely chat with you. But before going, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, विनी से तो बात करवा दी, लेकिन जाने से पहले सारे व्यूअर्स को कुछ कैंडिड फोटोज फ्रॉम योर वेडिंग जो सोशल मीडिया पे नहीं है, बट यू कैन शो अस. I think if I might have few of them which यू कैन चूज. एक्चुअली होंगी. सारी गिनती की कुछ पिक्चर्स हैं हमारे, वेडिंग पिक्चर्स हैं which came quite nice. अच्छे आए थे बहुत. I also liked it. This I have from my wedding day. This was being one of them, and this is my sister. ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स हैं अगर आप देखोगे. This being my most favorite. I think this is there on social media. अभी मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ क्योंकि अगेन मेरा माइंडसेट ऐसा है कि if you want to put your pictures, better put it on Instagram or a cloud. Why saving it on your phone and wasting your space? And before marriage picture कोई देख सकते हैं आप? Before marriage picture, if I have, yeah, I think. Oh, I found one, which is nowhere available. This was before marriage. That's so sweet. This is just before marriage. And our first meeting, let's see if I have that here. I think this has to be from that time. This being one of my favorites. Okay, so that was lovely and great. Thank you so much for coming here and being so candid. Thank you so much for having me. It's wonderful to be back on camera and to talk to you and be able to express what I feel in front of the camera, my people, and all the viewers. Thank you. Thank you so much. Thank you.